السلام علیکم ناظرین متی الدین خود کو منگولوں کے نرغے میں پا کر ان سے آخری مبادرت کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ اسی دوران قاضی سردار بھی نیچے اتر آیا۔ اجنبی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم ہمارے شکار ہو اور کوئی طاقت تمہیں ہماری دسترس سے بچا نہیں سکتی۔ قاضی سردار، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تم بے فکر رہو، میں تمہارے لیے ترنے والا ہرگز ثابت نہ ہوں گا۔ تم یہاں تک میرا تعاقب کرتے کرتے تو پہنچ ہی گئے ہو۔ بہرحال اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس میں اپنی اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس بار ہمارا پالا ایک ہوشیار اور نڈر شخص سے پڑا ہے۔ جہاں مجھے تمہاری سرکوبی پر خوشی ہوگی، وہیں تمہاری موت پر افسوس بھی رہے گا۔ کاش کہ تم قاضی ہوتے۔ سردار نے اپنے جوانوں کو حملے کا اشارہ کیا۔ قاضی جوان مختلف زاویوں سے متی الدین پر حملہ آور ہونے لگے۔ ان کے پاس لمبے لمبے نیزے اور بھالے تھے۔ متی الدین اپنی مہارت سے ان کے وار کو روکتا رہا۔ وہ مسلسل کوئی ایسا موقع تلاش کر رہا تھا کہ اسے خلا ملے اور وہ نیچے کی جانب پہنچ سکے۔ ڈھلوانی سطح پر اسے اپنے دفاع میں خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ قاضی باشندوں نے اسے اس طرح گھیر رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نیچے نہیں کھسک سکتا تھا۔ خود کو پوری طرح گھرا ہوا دیکھ کر متی الدین دیوانہ سا ہو گیا۔ اس کی تلوار کے واروں میں تیزی پیدا ہو گئی۔ دیوانگی کے عالم میں وہ 3 جوانوں کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسی لمحے کسی کی للکار سنائی دی۔ سب لوگ چونک پڑے۔ متی الدین کی توجہ پل بھر کے لیے چوک گئی۔ تھوڑی دور زرگامی بھاگتے ہوئے اس کی مدد کے لیے بڑھ رہے تھے۔ متی الدین کو غافل پا کر ایک قاضی جوان کا وار چل گیا اور نیزے کی نوکیلی انی اس کی ران میں اتر گئی۔ متی الدین کو یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کی ران کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا گر پڑا۔ قاضی جوان نے نیزے کو گوشت میں گھمایا اور ناقابل برداشت درد کے باعث متی الدین کے حلق سے کرہیں نکلنے لگیں۔ زرگامی متی الدین کو گرتے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ان کے پاس صرف تلواریں تھیں۔ قاضی سردار نے متی الدین کے گرنے پر چیخ نما نعرہ بلند کیا جو شاید اس کی نصرت کا اعلان تھا۔ اس نے زرگامی افراد پر نگاہ ڈالی تو ایک موٹا تازہ شکار دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اپنے بے ڈھنگے عصا سے جوانوں کو اشارہ کیا۔ جوان خونخوار انداز میں اپنے نیزے گھماتے ہوئے ان کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ زرگامی افراد در حقیقت فونیجو اور اس کا باپ تھا جو کہ متی الدین کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ فونیجو خان کے باپ نے اسے متی الدین کو وہاں چھوڑ کر آنے پر برا بھلا کہا تھا اور فوراً اسے لانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پہاڑی پر ان کا پالا قاضی قبیلے کے لوگوں سے پڑ جائے گا۔ ناظرین، جس بات کا خدشہ تھا وہی عمل پذیر ہوئی۔ کعب ارسفند کی مخبری نے لشکر اسلام کے لیے اس صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا تھا جسے ملکہ شجرت الدار بھی ٹالنا چاہتی تھی۔ شاہ لوئی نوم کے حکم پر 11 ذی الحجہ 647 ہجری کی صبح طبل جنگ بجا دیا گیا اور منصورہ کے بحر میدان میں صلیبی سپاہ سفرہ ہونے لگیں۔ ملکہ شجرت الدار کا اندازہ صحیح نکلا۔ گزشتہ شام کو کیے گئے فیصلے کے مطابق تمام امراء عساکر ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار تھے۔ ملکہ شجرت الدار نے سلطان نجم الدین ایوبی کی جگہ اسلامی لشکر سے ایک پرجوش خطاب کیا اور مسلمانوں کے جہاد کے فریضہ کی اہمیت یاد دلائی۔ وہاں کے بے گناہ افراد کو صلیبی افواج نے نہایت بے دردی سے اپنی اسلام دشمنی کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ملکہ شجرت الدار نے سپاہ میں جوش و خروش کو بڑھانے کے لیے سلطان کی بیماری کا ذکر کر کے اس مرحلے کو ان کے لیے امتحان کی گھڑی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سلطان منصورہ میں مقیم اپنی جاں باز عساکر کی اعلیٰ کارگزاری کے منتظر ہیں۔ وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں فی الحال معذور ہیں، ورنہ وہ شوق جہاد میں آپ کے شانہ بشانہ ہوتے۔ ملکہ شجرت الدار کے خطاب نے سپاہ کے تن بدن میں بجلیاں بھر دی تھیں۔ وہ اپنے درینہ حریف کو سبق سکھانے کے لیے بے قرار ہونے لگے۔ رئیس العساکر جاشن گیر نے نہایت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سپاہ ترتیب سے میدان میں اتاریں۔ دائیں اور بائیں بازو کے سالار بھی اس سے بھرپور تعاون کر رہے تھے۔ مملوک سپاہ کا جوش و جذبہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ پہلی بار صلیبی قوہ سے نبرد آزما ہونے والے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کا کڑا امتحان بھی تھا کہ وہ ایک بڑے حریف کے مقابلے میں کیسی کارگزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
तमाम ममलूक अमीर अपने सिपा के ज़मन में मुतमईन और बेखौफ दिखाई दे रहे थे। दोनों अफवाज की सफराई का अमल काफ़ी देर तक जारी रहा। एक जानब शाह लोईनोम अपने सलार और अमैदीन के साथ इस्लामी लश्कर का मुशाहिदा और तजिया करने में मसरूफ़ था, तो दूसरी तरफ मीलों तक फैले हुए सलेबी लश्कर की साफबंदी पर मलका शजरतुद्दार और रईसुल असाकिर जाश नकीर की निगाहें गड़ी थीं। सलेबी लश्कर एक मखसूस लिबास में मलबूस था, जिसमें सलीब का निशान नुमाया था। शाह लोईनोम लश्कर के कलम में मौजूद था। उसके अकब में एक बड़ी सलेबी मौजूद थी, जिसे एक बड़े रथ पर नस्ब किया गया था। सलीब को साथ रखने का मकसद सिर्फ यह था कि सलेबी सिपाही किसी मरले पर कमज़ोर पड़ने पर भी मैदान जंग से बददिल न हों और फरार होने की कोशिश न करें, बल्कि हक की सरबुलंदी के लिए मौत को गले लगाने वाली मिसाल को हमेशा याद रखें। सलेबी लश्कर में उनके कुछ हलीफ मुसलमान भी उनके शाना बशाना मौजूद थे, जो अपने अपने सब्ज झंडों को उठाए दूर से ही दिखाई दे रहे थे। इन मुसलमान हलीफों में एक शख्सियत अमीर मोनस की थी। उसे ज़िलहज्जा 637 हिजरी में सुल्तान नजमुद्दीन अयूब ने जजीरा से मजूल करते हुए मिस्र तलब किया था। उसे अपनी जान का खौफ दामनगीर हुआ और उसने सलेबी इलाकों में पनाह लेना बेहतर समझा। उसने वहां पर पनाह गुज़ीन रहते हुए जजीरा के रईसुल असाकिर को ना सिर्फ अपनी मुट्ठी में किया, बल्कि खुफिया तौर पर अमीरुल करक मलिक उन नासिर और अमीर हिम्स इब्राहिम को अपने साथ मिलाया। वो अभी नजमुद्दीन अयूब के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने वाले थे कि उन्हें शाह लोईनोम की आमद की खबर मिल गई। उन्होंने सुल्तान नजमुद्दीन अयूब के मुकाबले में खुद को कमज़ोर महसूस करते हुए चंद शराइत पर शाह लोईनोम जैसी बड़ी और मजबूत कुव्वत से समझौता कर लिया था। मलका शजरतुद्दार के साथ साथ कई उमरा को सलेबी लश्कर में इस्लामी परचम देकर तासुफ हुआ। जंग के आगाज से कबल बहाउद्दीन ज़ुहैर खुद सफारत लेकर सलेबी लश्कर पहुंचा। शाह लोईनोम जंग की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। वो मिस्र से यरूशलेम तक एक अजीम मसीह सल्तनत के क़याम का ख्वाब लेकर यहाँ पहुंचा था। पहले मरके के आगाज़ पर उसके मजहबी जनून का पैमाना इंतहा को छू रहा था। उसने निहायत हकारत से न सिर्फ सफारत ठुकरा दी, बल्कि किसी भी सूरत में जंग न टलने का वाज़ेह ऐलान किया। दिन के दूसरे पहर में बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। मलका शजरतुद्दार ने मैदान में मौजूद लश्कर इस्लामी को 8 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हुए बाएं बाजू को आगे बढ़ाया। शमशीरें टकराने लगीं, मैदान कटे फटे अज़ा से भरने लगा। कुछ तो खून का मरका शुरू हो चुका था। ममलूक सिपा बड़ी शुजात और बहादुरी से अपनी आला सलाहियतों का मुजाहरा कर रही थी। पहले मरके में इस्लामी लश्कर का सलार अहमद तोलानी था, जिसने सलेबियों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सबक सिखाने की पूरी कोशिश की। शाह लोईनोम ने पहले दिन में सिर्फ एक बड़े दस्ते को मैदान में उतारा था। वो ममालिक के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। दोनों जानब दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की गई। लुत्फ़ की बात यह थी कि शाह लोईनोम ने सलेबी लश्कर को इस्तेमाल करने की बजाय अपने मुसलमान हलीफों को पहले दिन के मरके में इस्तेमाल किया था। शायद मुकाबले पर मुसलमान भाइयों को पाकर इस्लामी लश्कर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा न कर पाया। पहले दिन में सलेबियों की जानब से 65 और मुसलमानों की जानब से 30 अफराद काम आए। नाजरीन, फौनौजो खान अजनबी को गिरते देख कर परेशान सा हो गया था, मगर उसने खुद पर बदहवासी को मुसलत नहीं होने दिया। एक तेज चीख के साथ उसने काजी बशिंदों को ललकारा और अपनी चिपटी तलवार घुमाता हुआ उनकी जानिब बेहंगम अंदाज में बढ़ता चला गया। फौनौजो खान का बाप बदलती हुई सूरत हाल को भांप चुका था। शायद इसीलिए उसने अपने बेटे को बाज रखने की नाकाम कोशिश की थी। बेटे को मौत के मुंह में जाते देखकर उसके जज्बा पदरी ने जोश मारा और वो भी ललकारता हुआ बेटे के ताक़ुब में लपका। वो अच्छी तरह जानता था कि इतने अफराद के साथ भिड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, मगर उसे पीठ दिखाकर भागना या लड़े बगैर मरना भी गवारा नहीं था। काजी सरदार का हुक्म पाकर कबीले के नौजवान मतीउद्दीन को उसी हालत में छोड़कर उन दोनों की जानिब बढ़े। वो तेज रफ्तारी से उनके गिर्द फैलते गए। फौनौजो खान और उसका बाप मुकम्मल तौर पर उनके हिसार में थे। तुम्हारा सरदार अपने वादे पर पूरा उतरा है। इस अजनबी को न सिर्फ शिकार कर लिया गया है, बल्कि एक नया शिकार भी अब तुम्हारे सामने मौजूद है। मेरा हुक्म है कि इसे कम से कम जख्म लगाकर काबू किया जाए और जिंदा कबीले में ले जाया जाए, ताकि कबीले वालों की प्यास बुझाई जा सके। काजी सरदार अपनी लाठी बेहंगम अंदाज में घुमाते हुए बोला। काजी नौजवान सरदार का हुक्म पाते ही
जोश व खरोश का मुजाहरा करने लगे। फनाजो खान का जिस्म भारी भरकम था, इसलिए वो चुस्ती का मुजाहरा नहीं कर सकता था। चुनाचे उसका बाप उसकी कमर की जानिब आ गया था। काजी नौजवान दहरे की शक्ल में घूमते हुए नेजे की अनिया उनको मारते। वो दोनों तलवार की धार से उनके वारों को दाएं बाएं कर देते। ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। दोनों बाप बेटे निहायत मोहतात अंदाज में मुकाबला कर रहे थे। काजी सरदार वक्त गुजरने पर झंझलाहट का शिकार होने लगा। उसी लम्हे उसकी निगाह खुले मैदान में उठने वाले गर्दो गुबार पर पड़ी, जो घोड़ों की टापों से उठ रहा था। वो गौर से उस जानिब देखने लगा। कुछ ही लम्हों में उसे अंदाजा होने लगा कि घोड़ों पर सवार लोगों के इरादे क्या हो सकते हैं। इसलिए उसने आवाज़ बुलंद करते हुए अपने नौजवानों को खतरे का एहसास दिलाया। सरदार को अच्छी तरह मालूम था कि वो इस वक्त मंगोलों की हदूद में मौजूद हैं। अगर उन्हें यहाँ घेर लिया गया तो जान बचने की कोई सूरत नहीं। काजी नौजवान अपने सरदार के इशारे पर अब जरहाना अंदाज में हमले करने लगे। वो जल्द अज जल्द मोटे मंगोल को अपने कब्जा में लाना चाहते थे। अगर सरदार उन्हें मंगोल को जान से मारने का हुक्म दे देता तो शायद अब तक उसका काम तमाम कर चुके होते। उसे जिंदा गिरफ्तार करना खासा मुश्किल काम था। फोनेजो खान के बाएं कंधे के पास नेज़े की अन्नी रगड़ खाती हुई गुजरने लगी तो उसने उस पर हाथ डालकर तेजी से झटका दिया। काजी नौजवान के पांव जमीन से उखड़ते चले गए और वह फोनेजो खान के सर से उड़ता हुआ दूसरी जाने मौजूद काजी नौजवानों के नेज़ों में गड़ गया। एक चीख उसके हलक से निकली और उसका सर ढल गया। काजी सरदार यह देखकर गुस्से से दीवाना हो गया। उसने मोटे मंगोल को मौत की सज़ा सुनाते हुए नौजवानों को यह हुक्म दिया कि वह तेजी से उसका काम तमाम करके यहाँ से अपनी हदूद की जानिब बढ़ने की कोशिश करें। मैदान में दिखाई देने वाले घोड़े अब काफ़ी वाज़े हो चुके थे। ये देखकर सरदार ने वापसी इख्तियार करना मुनासिब समझी। अगर वो अपनी हदूद में पहुँच कर क़याम करता तो शायद वह मंगोलों को ये बावर कराने में कामयाब हो जाता कि वो मुजरिम नहीं है। उसने गैर महसूस अंदाज में पीछे हटना शुरू कर दिया था। उसे मालूम था कि अगर उसने तेज़ी से वापस लौटने की कोशिश की तो काजी नौजवान अपने सरदार को बुज़दिल समझेंगे और उसके अमल को फरार कियास करते हुए मंगोल को छोड़कर उस पर हमलावर हो जाएंगे। उसी लम्हे उसके हलक से एक चीख बुलंद हुई और वह ज़मीन पर ढेर होता चला गया। काजी नौजवान अपने सरदार की चीख सुनकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। सरदार को ज़मीन बोस होते देखकर उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। नाजरीन, जिनानी सल्तनत के सरहदी मुहाफ़िज़ का सलार जो ज़नीफ़ आराम कर रहा था, उसे खबर मिली कि मंगोल सिपा का एक लश्कर जिनानी सल्तनत की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरहदी मुहाफ़िज़ों का यह दस्ता 200 अफराद पर मुश्तमिल था, जो इस पहाड़ी से जनूब की जानिब 10 फरलांग के फासले पर एक गार में मुकीम था। उसका काम सरहदी दखल अंदाजियों का कला कमा करना और जिनानी सल्तनत पर होने वाले हर किस्म के हमलों की पेशगी खबर ज़ार के दरबार तक पहुंचाना था। चंगेज़ खान की वफ़ात के बाद किसी दूसरे खान आज़म की निगाह जिनानी सल्तनत की जानिब नहीं उठी। शायद इसलिए सरहदी अखराजात को कम करने के लिए सिपाहियों का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से वापस बुला लिया गया था। जो ज़नीफ़ मंगोल हमलावरों की बाबत सुनकर लम्हा भर के लिए हैरान रह गया। उसने इस खबर को पहले पहले अपना ख्वाब तस्वुर किया। यही वजह थी कि उसने खबर लाने वाले से दोबारा इस्तफसार किया। जब उसे यकीन हुआ तो वो तेज़ी से गार में से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो उस जानब निगाहें दौड़ाने लगा जहाँ एक छोटा सा दस्ता बरकई खान की क़ियादत में जैनानी सरहद की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा था। हैरत अंगेज़ जो ज़नीफ़ बुड़बुड़ाया, मगर ये मंगोल दरे वाले रास्ते की जानिब जाने की बजाय उस जानिब क्यों जा रहे हैं? उसका नई भी उसके हक़म में पहुँच चुका था। जो ज़नीफ़ ने पुश्त पर किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए गर्दन घुमाई। नायब का चेहरा देखकर उसने अपने सवाल को दोहराया। मुझे भी इस हरकत पर हैरत है कि अगर ये लोग जिनानी सल्तनत में दाखिल होना चाहते हैं तो ये फिजी पहाड़ की जानिब क्यों बढ़ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उस जानिब कोई न कोई ज़रूर कोई गड़बड़ है। वहाँ कैसी गड़बड़ हो सकती है? जो ज़नीफ़ उलझे अंदाज में बोला। बहरहाल तुम फौरी तौर पर अपने सिपाहियों को तैयार करो। हम खुद वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्या दरबार में खबर भिजवा दी जाए? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तमाम सिपाही साथ लिए जाएं या एक दस्ता काफ़ी होगा। जो ज़नीफ़ उस पर एक तेज़ निगाह डालकर बोला, तुम फजूल बातें बहुत करते हो। जितने सिपाही हो सकें तैयार कर दो। दूसरा, तुम्हें मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं।
तुम यहीं रह कर नजर रखोगे। अगर कोई गंभीर मामला दरपेश हुआ तो मैं तुम्हें सुर्ख कपड़े का इशारा दे दूंगा। तुम उस वक्त दरबार के लिए कासद रवाना कर देना। समझ गए या मजीद कुछ समझाना बाकी है? नैब खिसियाना सा होकर वहां से चला गया। जो जनीफ जरगामी कबीले से निकलने वाले उस छोटे से दस्ते को गौर से देख रहा था। शक्ल सूरत से वो सिपाही मालूम होते थे, क्योंकि उनके लिबास करीबन एक से दिखाई दे रहे थे। जरगामी कबीले के लोग मुख्तलिफ रंगों के लिबास में दिखाई दिया करते थे। कभी उसे कोई ऐसा वाक़या देखने का इत्तफाक नहीं हुआ था कि जब जरगामी कबीले के लोगों ने एक ही रंग का लिबास जेब तन किया हो। उसने ख्यालों को परे धकेला और फिजी पहाड़ की सिमत कुछ आगे बढ़कर एक बड़े पत्थर पर पहुंचा और आगे को झुककर उस जानिब होने वाली सरगर्मियों को गौर से देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन वहां जो कुछ भी था उसकी निगाहों के हिसार में नहीं आ पाया था। सलेबी लश्कर से नबरदस्त मई में 18 दिन बीत चुके थे। रईस उल असाकिर मलका शजरतुद्दार की हिदायत पर जरहाना हमलों से गुरेज कर रहा था। उसकी दिफाई हिकमत अमली ऐसी मौसर थी कि सलेबी लश्कर 18 दिनों में पूरा जोर लगा लेने के बावजूद कोई नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। इस्लामी लश्कर की जानब से अबू खवील्द ने दिफाई हिकमत अमली से इनहराफ किया और वह जरहाना अंदाज में सलेबी सफ़ों में घुसता चला गया। उसके जुरतमंदाना फेल और आला शमशीर जनी के मुजहरे ने सलेबी सफ़ों में इंतशार पैदा कर दिया था। सलेबी सिपाहियों की गर्दनें तन से जुदा करता हुआ जब वो वापस लौटा तो उसका तमाम जिस्म खून से तरबतर था और जिस्म पर 12 गहरे जख्म आए थे। मलका शजरतुद्दार ने उसे फौरी तौर पर सरकारी तबीब खाने में मुंतकिल करते हुए कहा था कि सेहत याबी के बाद इसे अपने इस जुर्म की कड़ी सज़ा भुगतना होगी। मलका शजरतुद्दार की जानब से यह निहायत सख्त इक़दाम था जिसने दूसरे जोशीले उमरा को मुकर्ररा कायदे की हदूद फलांगने से बाज रखा था। मलका शजरतुद्दार को तुरान शाह की आमद का बेचैनी से इंतज़ार था। उसे गुज़श्ता हफ्ते में पहुंच जाना चाहिए था, मगर वो रास्ते में बीमार पड़ गया और कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। सेहत याबी के बाद उसने तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया और 29 ज़िलहज्जा को दोपहर के वक्त मंसूरा के मैदान में पहुंच गया। जंग जारी थी। तुरान शाह की आमद पर फलक शगाफ नारा बुलंद हुआ और जंग में तेज़ी पैदा हो गई। शाह लोही नौ मुसलमानों की कुमक की इतला पाकर परेशान हो गया। उसने दिफाई हिकमत अमली को बरकरार रखते हुए वो दिन नहायत मुश्किल से गुजारा। शाम को जंग बंदी पर लाशों का शुमार किया गया तो मैदान में सलेबी सिपाहियों की लाशें कसरत से पाई गईं। ये मंजर सलेबी लश्कर के हौसले पस्त करने के लिए काफ़ी था। तुरान शाह ने आगे बढ़कर पे दर पे हमलों का सिलसिला शुरू किया था, जिस पर वो जोशीले सिपाही जो हुक्म न मिलने पर दबे दबे अंदाज में जंग लड़ रहे थे शह पाते ही अपने जौहर दिखाने लगे। शाम को तुरान शाह की हिदायत पर सुल्तान नजमुद्दीन अयूब की मौत का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। अपने महबूब सुल्तान के इंतकाल की खबर पाकर मुसलमानों में गम की लहर दौड़ गई। मलका शजरतुद्दार ने ममलूक उमरा को पहले से तुरान शाह के इंतखाब की हिदायत कर रखी थी, इसलिए तुरान शाह के नाम को मुतफ़िका तौर पर नए सुल्तान के लिए मंजूर कर लिया गया। अगली सुबह जंग के आगाज़ से पहले बाकायदा रस्म ताज पोशी का ऐलान किया गया। तमाम रात इस्लामी लश्कर में सुल्तान नजमुद्दीन अयूब के लिए मग़फ़रत की दुआएं की जाती रहीं। नाजरीन, एक घुड़सवार तेज़ रफ्तारी से बरकई खान के नज़दीक आया। बरकई खान काजी बशिंदों की सरकोबी के ख्याल में मुस्तगरक था। पहलू में हरकत महसूस करके चौंक पड़ा। बरकई खान ने सर को जुम्बश देते हुए उससे इस्तफसार किया तो उसने हाथ के इशारे से बरकई खान की तवज्जो शुमाल की जानिब मबजूल कराने की सही की। बरकई खान ने सर घुमा कर देखा तो उसे शुमाल की जानिब से जिनानी सिपा के सफ़ेद घोड़ों का धुंधला सा गोल पहाड़ी से उतरता हुआ दिखाई दिया। यह फैसला बड़ा मुश्किल था कि काजी बशिंदों से निबड़ने के साथ साथ जिनानी लश्कर को भी दावत मुबाजरत दी जाए या उनसे कनी कतरा के निकल जाए। बरकई खान ने लम्हा भर में उन्हें देखने का फैसला किया और सारा सबात में हिलाते हुए उसे इशारा किया तो सिपाही ने अपने घोड़े का रुख मोड़ते हुए वापसी का रास्ता इख्तियार किया। उसने तमाम सिपाहियों के गुजरने के बाद घोड़े की पीठ पर डाला गया एक बड़ा सा कपड़ा अपनी तलवार की नोक पर उठाकर जरगामी कबीले की जानब तेज़ी से लहराना शुरू कर दिया। ये एक तरह की अलामत थी कि वहाँ मौजूद तमाम सिपाही फौरी तौर पर उनके अक़ब में मदद के लिए रवाना हो जाएं। बरकई खान ने अपने सवारों को तेज़ रफ्तारी से बढ़ने का इशारा किया। वो काजी बशिंदों को जिनानी दस्ते की मदद हासिल होने से पहले पहले सबक सिखाना चाहता था।
منگول سپاہی جنانی دستے کو پہاڑی سے اترتا دیکھ کر حالات کی نزاکت کو سمجھ چکے تھے۔ گھوڑوں کی رفتار میں نمایاں اضافہ اس بات کا ثبوت تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔